آج کا خاص کلام جو خدا نے دیا ہے وہ ہے زندگی کا کلام، حیات کا کلام، زندہ رہنے کا کلام۔ جس خدا نے آپ کے اندر زندگی کا دم پھونکا، آپ کی ساری سیدھی راہیں کرتا ہے، آپ کی منٹ منٹ خبر لیتا ہے، آپ کو ہر جگہ سنبھالتا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے سر کے بال سفید ہونے تک، بڈھا ہونے تک وہ بولتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیرے بیچ میں ہوں گا، میں تیری عمر دراز کروں گا۔ وہ خدا جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، آج ہم ان سے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، کس طرح زندگی کی ساری نعمتیں دیتا ہے، کس طرح اگر ہم کسی جگہ بھی ڈاواں ڈول ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی نکمی چیز ایسے آپ کو گھیر لیتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم خدا کو پورے طور سے، لائق طور سے ہم اس کی پرستش، ہم اس کی سیوا، ہم اسے چومتے نہیں۔ ہمارے سے غلطیاں، ہم سے خطائیں، ہم انسان، لیکن وہ انسان کو بے حد پیار کرتا ہے۔ انسان کے لیے اس نے بہت کچھ کیا، اب سب کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا کہ اپنا جیون آپ کے لیے لٹا دیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ زوردار تالیوں سے خدا کے نام کو جلال دیں۔ تازہ کلام، قوت والا کلام، مسا والا کلام، جلالی کلام، زندگی دینے والا کلام، اپنی زندگی دینے والا کلام، اور فردوس میں خدا کے ساتھ لے کر جانے والا کلام، کامیابی اور فتح والا کلام، اور زندگی کے ساتھ اور ساری لازمت پوری کرنے والا کلام آپ کی زندگی میں آج بویا جائے گا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا قوت والا خدا ہے۔ کیسے اس زندگی کو، بے شمار لوگ کہتے ہیں دکھوں سے بھری زندگی، کوئی دکھوں سے بھری نہیں، سارے دکھوں سے نجات دینے والا ہمارا شافی خداوند ہے، ساری مرضوں کو دور کرنے والا ہمارا خداوند ہے۔ کہتے گھاس کی طرح مرجھا جاتے نا، جب آپ خدا کے ساتھ ہیں، جب خدا کا پاک بسا ہے، جب خدا کی قدرت آپ کے بیچ ہے، کوئی گھاس کی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے تو زندگی پر میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ وہ میں اس لیے آیا کہ تاکہ تم سارے جہان میں میرے نور بن کے چمکو۔ جب خدا آپ کے بیچ میں سکونت کرے گا تو آپ کی زندگی کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، اور قیامت اور زندگی میں، سب کچھ وہی ہے۔ یسوع ناصری جس نے کہا کل اختیار میرے پاس ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں میرے پاس ہے، عالم راہ کی کنجیاں میرے پاس ہے، میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، میرے بند کی کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ خدا جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، وہ خدا جس نے آپ کے اندر زندگی کا دم پھونکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو آ میرے پاس آ، تو زندگی پا اور کثرت کی زندگی پا۔ ہاللیلویہ! کتنے چاہتے ہیں کہ آج کثرت کی زندگی پانا چاہتے ہیں؟ کتنے چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ! خدا کا کلام سنیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، امثال کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 35 آیت میں، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے، زندگی پاتا ہے، وہ خداوند کا مقبول ہوگا۔ جو مجھے پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، اور وہ خدا کا مقبول ہوئے گا۔ اب سب خدا کے مقبول بن سکتے ہیں، اب سب خدا کی نظر میں اس کے جلیل القدر بیٹے بن سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ آپ کو کہتا ہے چونکہ تو میری نظر میں جلیل القدر ہے، میں نے دل کی گہرائیوں سے تیرے پر اپنی شفقت چڑھائی ہے، اپنی محبت کی ہے، وہ آپ کو بے حد چاہتا ہے۔ اور خدا کہ جب مقبول ہوں گے، آدمیوں کی بھی مقبول ہوں گے، آدمی بھی آپ کو بڑی پیار سے دیکھیں گے، آپ کو ہر جگہ آپ کی فیور کریں گے، ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن بشرط ہے کہ ہم کس طرح خداوند خدا کو پانا۔ میں نے ابھی بھی دعا کی تھی، اپنے سارے کام چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے تڑکے میں تینوں ٹونڈنا، یا رب میرے خدایا۔ داؤد کہتا ہے میں جھاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں، میری جان کو ہر وقت تیری دھن ہے، تیرا دانا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے میرے خدا، میرا دیہات تجھے پسند ہے، میرا دل تجھے میں شادمان رہے۔ یہ داؤد کہتا ہے کیسے اس نے صبح اگلی بار خدا کی اٹھ کے کرتا تھا، رات کو خدا کی حمد کرتا تھا، صبح کو خدا کی حمد کرتا تھا، دوپہر کو خدا کی، ہر وقت وہ خدا کی حمد کرتا تھا۔ ایسی زندگی آپ سے خدا چاہتا ہے کہ خدا جس نے زندگی کا دم دیا ہے،
पासा भी पलटते हैं तो आप खुदा का शुक्र करें, थैंक यू जीसस, तूने मुझे जिंदगी दी, थैंक यू खुदावन तूने मुझे सेहत दी, थैंक यू खुदावन तूने मुझे संभाला। हर लम्हा हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी। क्या कलाम कहता है, रोमियो 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी मिलती है। नेकोकारी, बदी नहीं, गाली गलौच नहीं, सूटेबाजी नहीं, शराब नोशी नहीं, दुनिया की चीजें नहीं, ये सारी गंदी नापाक चीजों को अपनी जिंदगी में निकाल देना है, लालच निकाल देना है, बदी निकाल देनी है, नफरत की चीज निकाल देनी है, प्राइड निकाल देनी है। हर किसी हलीम फरोतल यीशु के चेले चेलियां बन जाओ, यीशु के कदम पकड़ लो जिस तरह याकूब ने पकड़े थे। वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरे पास आए और मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा और कसरत की जिंदगी। आज जब वो आपके बीच में आया, वो कहता कोई तपाली तेरे डेरे में चला चाहते हो, कोई वबा तेरे नजदीक नहीं आएगी, कोई आफत तेरे नजदीक नहीं आएगी, कोई आफत आपके नजदीक नहीं आएगी। लेकिन जब यीशु का पाक रूह, आपका प्याला ओवरफ्लो भरना चाहिए। साम 23 में कहता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है पाकरू की कुदरत से, पाकरू की कुदरत से, पाकरू की ताकत से, पाकरू के जोर से। लबालब यीशु का पाक मसा आपके ऊपर, जब आप सारी ज़माइशों से पास में देते हैं, जब आप खुदा की रास्तबाजी पूरी करते हैं, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदा के पाक रूह से नहाते हैं, खुदा बाप आपके अंदर आके सुकून करता है, आपको बरकत देता है, आपको जिंदगी देता है, आपके सारे मोड़ तब्दील करके सीधा अपनी तरफ कर देता है। बड़ा जरूरी है कि हम खुदा की पाक मर्जी पूरी करके उसके साथ चलें। कलाम में जो शख्स मगरूरी करते हैं, जिनके अंदर आप सबको याद होना चाहिए, उसने कहा कि आपकी जिंदगी मेरे हाथ में है, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। उसने कहा लेकिन मैं तुझे तंबीह करता हूं, तुझे रिक्वेस्ट करता हूं, तू जिंदगी को पा और कसरत की जिंदगी पकवा। लेकिन चॉइस आपकी है, वो आपको जिंदगी बख्शने के लिए कहता है। तभी जब आप खुदा के ओबीडिएंट बन के, खुदा की सारी बातों को एक तरफ करके खुदा के आगे अपने आप को निछावर कर देंगे, अपने आप को उसके आगे रख देंगे। क्योंकि जिस तरह हम अपने बच्चों को बढ़ता फूलता देखना चाहते हैं, उसी तरह वो आप तमाम को, हम सबको बढ़ता फूलता और खुशहाल, और आपकी ज़िंदगी में से उसकी महक, आपकी ज़िंदगी में से उसकी मिठास, आपकी ज़िंदगी में से उसकी ताजगी, वो आपको देखना चाहता है। वो आपका खुदावंद है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई मुफलसी, कोई गरीबी की रूह आपके नजदीक नहीं आएगी। जब आप यीशु को अपना लेंगे, यीशु आपका टोटली इख्तियार लेगा, टोटली आप यीशु के बन जाएंगे, तो यीशु आपकी जिंदगी का बानी और आपके लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। दाऊद कहता है मैंने अपने हक तारत से, अपने खुदा से फरियाद की, उसने आसमान से सुन के मेरे लिए सब कुछ कर दिया। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। कलाम में लिखा हुआ है, डैनियल की किताब 5 बाब उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है कि डैनियल बिल्तशर जो नबूकदनेस्सर का बेटा था, उसने खुदा के आगे बड़ी मगरूरी का काम किया। उस कलाम में लिखा हुआ है कि जब वो महफिल में बैठा हुआ था, उसने अपने खादमों को बोला, हैकल से जो ज़रूफ लाए हो उनको लाओ, हम उसमें शराब पिए, पाक चीज़ों को। उसमें उसने शराब पी। कलाम में लिखा है उसने अपनी बीवियों, अपनी हरमों, अपने उमरा के साथ मिलकर उन्होंने शराब पी और खुदा ताला की तारीफ ना की, बल्कि बुतों की पूजा की, हाथ के बनाए हुए बुतों की, सोने चांदी दौलत हर चीज की उसने पूजा की। और खुदा ने उसे बड़ा सा एक मैसेज, एक बड़ा हाथ देखा और उसमें लिखा मैना तस्कीन, तू तोला गया कम निकला, आज के बाद तेरी जिंदगी भी ले ली, तेरा सब कुछ ले लिया। खुदा ने उसे तबाह कर दिया। खुदा आपको, हमको, सबको तंबीह करता है। वो औरत, फरीसी औरत, कलाम में लिखा है यूहन्ना 4 बाब में, उस औरत ने किस तरह बदकारी में, बदी में फंसी हुई थी। खुदा ने यीशु उस कुएं में उसके पास गए, बैठे, वो पानी भरने आई थी। आप सब किस्सा सारे जानते हैं। वो औरत गुनाह की दलदल में दसी थी,
5 शोर कर चुकी थी, छठा जो था वो भी उसका नहीं था। इतनी बदकारी में वो मुब्तला थी। खुदा यीशु ने उसे बड़ी प्यार से उसे समझाया, ऐ बेटी तू मुझे पानी पिला। उसने बड़ी नफरत अंगेज कहा, तू यहूदी हो के मुझ सामरी से पानी मांगता है। यीशु ने मुझसे कहा, देख अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, ये जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, अगर मुझसे मांगती तो मैं जिंदगी का पानी तुझे देता। वो फिर दुनियावी बात करती है, कोई तेरे पास ना बाल्टी है, ना बोका है, ना रस्सा है, कुआं बड़ा गहरा है, तू कौन सा पानी मुझे निकाल के पिला। यीशु ने कहा, मैं तुझे वो पानी पिलाऊंगा जो तुझे कभी प्यास ना लगे, बल्कि एक जिंदगी का चश्मा। उसकी जैसे ये लफ्ज बोले, उसकी जिंदगी की पूरी केमिस्ट्री चेंज होगी, उसकी जिंदगी की पूरी कड़वाहट चेंज होगी, उसकी जिंदगी सर से लेके पांव तक बिल्कुल बदल गई। और उसके जल्दी से बोले, तू मुझे वो पानी पिला दे। और उसके अंदर वाकई की चश्मा चालू हो गया, उसकी जिंदगी में ईमान की ताजगी आ गई, उसकी जिंदगी में यीशु का वो मसा आ गया। वो कहते मुझे जल्दी से। यीशु ने कहा, हाँ मैं तुझे पानी देता हूं, जा अपने शोर को ले आ। मैं बेशोर हूं। उसको नहीं पता कि राजों को जानने वाला खालिक और मालिक, जिसके वो सामने खड़ी है, जिसने उसके बाल भी गिने हुए, वो सब कुछ जानता है कि मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या। हाँ यीशु ने कहा, हाँ तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू बगैर शोहर है, तूने गलती नहीं की। 5 तू पहले छोड़ आई है, एक जिसके पास है वो भी किसी का, वो तेरा शोहर नहीं है। लगता है तू नबी मालूम होता है, लगता है तू खुदा का बंदा मालूम। खुदा के बंदों से कोई चीज छुपी नहीं है मेरे बेटे मेरी बेटियों। वो सब कुछ आपका जानता है, वो हर चीज आपकी जानता है। वो नहीं चाहता कि आप खता करें, वो नहीं चाहता कि आप गलती करें, वो नहीं चाहता कि आप झूठ बोले, वो नहीं चाहता कि आपके पम खुता, वो नहीं चाहता कि आप बदी की तरफ जाए, वो नहीं चाहता कि आप बेईमानी की तरफ जाए। वो चाहता कि मेरे बेटे बरकत पाए, खुशी पाए, शांति पाए और जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हम आपने अपनी जिंदगी में से ये लानतें खत्म कर रही है, और आपके अपनी जिंदगी में ये सारी कमियां कमजोरी इस साल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस तरह मेरे खुदा यीशु ने आप सब के लिए अपने आप को सलीब पर लटका दिया कि आप सब खुशी पाए, शांति पाए, बरकत पाए और ताजगी पाए। इसलिए वो चाहता कि इस औरत की तरह सब कुछ आप निकाल दे। बदी मेरे दिल में होवे जरा, कभी नहीं सुनेगा मेरी दुआ। जब बदी मेरे दिल में हो तो दुआ सुनता है? नहीं सुनता, नहीं जवाब देता। लेकिन जब आप सच्चे दिल से, रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से उसके कदमों में रखे फरियाद करेंगे, क्या आप मेरे खुदा मेरी फरियाद सुन ले, मेरी मिन्नत सुन ले, मेरी इल्तिजा सुन ले। आसमानी बाप अपना हाथ आपके ऊपर, यस मेरे बेटे, यस मेरी बेटी, मैं तेरी सारी मुश्किलें परेशानी दूर करूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ साथ खड़ा हूं। वो आपको उठा खड़ा करेगा। सोचे कि हमारी जिंदगी में क्या कमी है, हमारी जिंदगियां किस राह में हैं। खादम फोन करता है, आ जाएंगे जी, नहीं आए। खादम फोन करते हैं, जवाब नहीं देते। खुदा आपको फोन करेगा आसमान से, आप उसे जवाब देंगे। ये जिंदगी जो उसने दी है, अपने आप को उसके आगे हवाले करें, वो आपको कामयाबी, फतेहमंदी और ऐसी जिंदगी देगा जो रूह से भरी हुई, कुदरत से भरी हुई, पाकरू की मूरी से भरी हुई आपको देता है, और आप शाद बन पाएंगे। वो मेरा खुदा आज आपको यह जिंदगी देना चाहता है। फिर गुनाह से किस तरह 38 बरस का मफलूज जो 4 पाई पर लटका हुआ था, खुदा ने उसे एक बड़े गुनाह से, उसे खुदा, मैंने बताया, तमाम गुनाहों को जानता है, तमाम भेदों को जानता है, उससे पता है। वो बोलता है, स्पष्ट लिखा है, मैं ऐसा तुझे करूंगा कि तुझे ऐसे रोग लगाऊंगा कि तेरा सत्यानाश हो जाए। लेकिन खुदा यीशु ने अपनी कुर्बानी दे के, खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी दे के हम सब के लिए माफी का पैगाम दिया कि अब जब भी आए, जिस भी चाहे उसे माफ कहेगा, बाप माफ कर दे। पाकरू आपको कायल करेगा, खुदा का पाकरू आपके अंदर आएगा, बोलेगा माफी मांग, रिपेंट कर, तौबा कर। किसी वक्त भी आपको याद है मेरे से ये गलती, खुदा बाप माफ कर दे, अबा माफ कर दे। बाप तो उसी वक्त माफ करता है। हम अपने बच्चों को कितने भी गुनाह में दबे हुए हैं, कितने भी, जब वो आपके पास आता है, डैडी माफ कर दे, आपका दिल प्यार से भर जाता है, आप उसे दिल से लगा लेते हैं और फिर उसे माफ कर, जा अभी गलती नहीं करना, अभी गुनाह नहीं करना, अभी खता नहीं करना, अब तंबीह कर दे।
वही बाप आपसे चाहता है। वो चाहता है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो चाहता है कि आप खुशी पाएं और शादमानी पाएं। आपकी जिंदगी में कोई लानत ना हो, आपकी जिंदगी में कोई वसवसा ना हो, आपकी जिंदगी हमेशा ऐसी खूबसूरत, ऐसी जो उसने पैदा होने पर माँ बाप लड्डू बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, घर में खुशियाँ करते हैं, वो आसमानी बाप भी आपके लिए खुशियाँ करता है कि ये मेरा बेटा बेटी इस दुनिया में लाया हो आपको, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी में से उसकी मिठास निकले, आपकी ज़िंदगी में से उसका प्यार निकले। हालेलुया। एक जोरदार तालियों से खुदा उनके नाम को बुला दें। मैंने कहा 38 बरस से खुदा यीशु जो बीमार था, मफलूज हो गया था, चल नहीं सकता था, सिर्फ ये इंतजार था, खुदा ने उसका दम कायम रखा कि वो तौबा कर ले, वो खुदा के चरणों में आ जाए, वो रिपेंट कर ले, और वो शख्स इंतजार में था कोई शख्स आए और उसे उस हाउस में लेके जाए जो फरिश्ता लाता था, लोगों को शिफा मिलती थी। यीशु से कहता है कि तू शिफा पाना चाहता है? शिफा का मंबा उसके पास चल के गया। उसका दिल रहम से, प्यार से, फजल से भरा हुआ था। शिफा का मंबा, प्यार का मंबा, तबीब आजम यीशु मसीह उसके पास गया। फिर भी उसकी निगाह उस पर नहीं पड़ी। उसने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे, उस यीशु ने कहा मैं तुझे बोला उठ, अपनी चारपाई उठा, चल, फिर उठ। उसी वक्त वो बंदा जल्दी से उठा जिसने 38 वर्ष नहीं चला, मेरा ख्याल चलना भी भूल गया होगा, लेकिन खुदा की ऐसी कुदरत, खुदा की ऐसी कुवत, खुदा का ऐसा मसा, खुदा की ऐसी मजबूती उसकी टांगों में टकन में आई, फौरन उठ खड़ा हुआ और अपनी चारपाई लेकर चला गया। और यीशु के साथ बड़ी भीड़ थी, यीशु से कह ना सका। जब वो हैकल में यीशु को मिला, उसने बोला मियाँ बात सुन, अब तू ठीक हो गया और मैं तुझे कहता हूं आइंदा कभी गुनाह नहीं करना। उसने कहा अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तू ही है, ये जिंदगी जो थी आसमान से, अब तेरी राहों पर चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। वो खुदा बाप आज आप सबको नई जिंदगी देता है। एक शख्स आया यीशु के पास, कहने लगा उस्ताद मैं क्या करूं कि जिंदगी पाऊं, हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने उसकी तरफ देखा, यीशु ने उससे कहा, मत्ती सुनी बाप उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, कौन सी नेकी करूं? यीशु ने उससे कहा तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, गौर से सुनिए, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा कौन से हुक्म? यीशु ने उससे कहा खून ना कर, ज़िना ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मन मोहब्बत कर। उस शख्स ने कहा मैं इन सब पर अमल किया है। खुदा यीशु ने उसकी तरफ देखा, क्या हम सब खुदा के कलाम पर, खुदा की शरीयत की किताब पर अमल करते हैं? क्या हम इसको पढ़ते हैं? क्या हम इसको पढ़ते हैं? यीशु को हमें कहना पड़ता है कि हम इस पर अमल करें, हम इस पर चलें। कैसे हम चल सकते हैं? सबसे बड़ा जरूरी है, अगर ये जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर जिंदगी नहीं रही तो दाऊद कहता क्या मुर्दे तेरी सताइश करेंगे, मर जाएंगे तो जमीन के नीचे, लेकिन अगर आपकी रूह आसमान पर जाएगी, आपने नेकी की होगी तो आपके साथ खुदा के साथ जाएगी, नहीं तो दूसरा बड़ा हुआ वो जन्नत का मुंह खुला हुआ उसकी तरफ जाएगी। वो चाहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ फिरदौस में, जहां मैं होऊंगा वहां मेरे बेटे बेटियां होंगे। वो शख्स, खुदा ने कहा तू इन सब पर अमल कर, मैं जानता हूं कि तू अमल करता है, लेकिन जहां तुझ में एक कमी है, अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा और आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा। अब बड़ी मुश्किल, वो अमीर आदमी था, बड़ा दौलतमंद था, सब कुछ, वो यीशु से मायूस हो गया, कहने लगा ये सब कुछ मैं नहीं बेच सकता, जिंदगी को छोड़ के मौत की तरफ चला गया। शागिर्दों ने जब यीशु ने कहा अमीर आदमी का खुदा की बादशाह में दाखिल होना नामुमकिन है,
शागिर्दों ने कहा ये कैसे मुमकिन है, हम तो सब कुछ छोड़ छोड़ के तेरे पीछे आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा। पतरस ने, लूका ने, तूमा ने, मत्ती ने सब कुछ खुदा की नजर कर दिया था। हमें क्या, यीशु ने बोला तुम क्यों घबराते हो, जो मेरी खातिर सब कुछ करता है, माँ बाप बहन भाई खेत सब कुछ छोड़ देता है, उसको 100 गुना मिलेगा। आसमान का खजाना उसके लिए है। 100 गुना, कितने चाहते हैं 100 गुना 200 गुना आपको मिले, कितने चाहते हैं आपको 100 गुना मिले, 200 गुना मिले, 400 गुना मिले, सब कुछ देने वाला खुदा है। वो आपके लिए देने के लिए तैयार है, देने के लिए। ले लो उससे, ले लो उससे अपनी रूह, अपनी जान, अपना घर, अपने बच्चे, सब खुदा की खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगा खुदा। जब खुदा आपके अंदर सुकूनत करता है, खुदा आपका पूरा चार्ज ले लेता है, खुदा आपकी जिंदगी का खालिक और मालिक है। जब खुदा पर मेरा इत्काद तू, मेरा भरोसा तू, मेरा सहारा तू, मेरा आसरा तू, मेरा तवक्कुल तू, मेरा शाफी तू, मेरा मुनज्जी तू, मेरा पालने वाला तू, मेरी रहबरी करने वाला तू, मेरे साथ चलने वाला तू, मेरा राखा तू, तेरा राखा न कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। हालेलुया। तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना, उन्हें नींदर नहीं आती, तुहानू नहीं देखता रहता। मेरा मुंडा, मेरी कुड़ी, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे साथ चाहे, मेरे गले में लग जाए, मेरे साथ चले और मैं उसे आसमानों तक ऊंचा लेकर जाऊंगा। आसमानों तक आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपकी सारी, किस तरह वो जिसका बेटा बीमार हो, बड़ा बेहतर करके बादशाह का मुलाजिम दौड़ के आया, खुदा यीशु तुम मेरे बेटे के साथ, वो बड़ा सख्त बीमार, चल के उस पर हाथ रख दे। यीशु ने उसकी तरफ देखा, यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता है, एक लफ्ज निकलेगा। वो जानता था कि इसके ये लगड़े चलाता है, वो जानता था कि ये मुर्दे चलाता है, वो जानता था अंधे ने देखा है, वो जानता था कि खुदा बाप इसके हाथ में सब कुछ है। उसने हाँ मेरा बेटा बच गया, वो जिंदा है, जीता रहेगा। यस मेरा बेटा जीता। जब जाके देखा नौकर भाग गया, तेरा बेटा बिल्कुल 100% ठीक हो गया। उसकी तप उतर गई। किस वक्त? 7वें घंटे के करीब। उसी वक्त यीशु ने उससे कहा था, वो जिंदगी का खालिक और मालिक आज आपको जिंदगी देना चाहता है।